پالوس رسول کے نام کرنتھس کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا پہلا خط 10ویں آیت سے پڑھوں گا، پہلا باب۔ اب اے بھائیو، یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے، اس کے نام کے وسیلہ سے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہوں، بلکہ باہم یک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو، کیونکہ اے بھائیو تمہاری نسبت مجھے خلوے کے گھر والوں سے معلوم ہوا کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو پالوس کا کہتا ہے، کوئی اپلوس کا، کوئی کیفا کا، کوئی مسیح کا۔ کیا مسیح بٹ گیا؟ کیا پالوس تمہاری خاطر مصلوب ہوا؟ یا تم نے پالوس کے نام پر بپتسمہ لیا؟ خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ کرسپس اور گیوس کے سوا میں نے تم میں سے کسی کو بپتسمہ نہیں دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے میرے نام پر بپتسمہ لیا۔ ہاں، استفاناس کے خاندان کو بھی میں نے بپتسمہ دیا، باقی نہیں جانتا کہ میں نے کسی اور کو بپتسمہ دیا ہو، کیونکہ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری سنانے کو، تاکہ مسیح کی صلیب بے تاثیر نہ ہو، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ سو کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا آپ سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ سو خداوند نے پیارے عزیزو، آج کا دن جو بہت ہی خاص دن ہے، اور اس پر ہم صلیب کو یاد کرتے ہیں۔ صلیب یسوع مسیح کے مصلوب ہونے سے پہلے لعنت کا نشان تھی، مگر جب سے یسوع مصلوب ہو گیا ہے اس وقت سے صلیب جو ہے وہ فتح کا نشان بن گئی ہے۔ صلیب کا نشان مسیحوں کے لیے بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم ہے۔ آج کے دن 4 باتیں صلیب کے تعلق سے کرنا چاہتا ہوں کہ صلیب کیا ہے۔ صلیب اصل میں انسان کی بد نصیبی، بدحالی کا اظہار ہے۔ اس بات کا اظہار ہے کہ انسان بد نصیب ہو گیا تھا، انسان بدحال ہو گیا تھا، انسان جو ہے وہ اس دنیا کے اندر خوشحالی سے دور چلا گیا تھا۔ یہ صلیب نہ صرف انسان کی بدحالی کا نشان ہے جس کو یسوع نے اٹھایا، بلکہ یہ انسان اور شیطان کے درمیان عارضی دشمنی کا بھی اظہار ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ صلیب پر مصلوب کیا گیا ہے، اور شیطان نے پورا زور لگایا کہ جو کچھ وہ اس کے ساتھ کر سکتا تھا اس نے کیا، بدحال کرنے کی کوشش کی، اسے اذیت پر اذیت دینے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ نشان جو ہے یہ انسان اور شیطان کے درمیان عارضی دشمنی کا، عارضی کا مطلب عارضی ہوتا ہے، پرماننٹ نہیں ہوتا، یہ عارضی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ صلیب پر مسیح نے انسان کا کفارہ دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ کفارہ۔
कीमत चुकाई है और कीमत चुकाकर, फिदिया देकर, कफारा देकर इंसान का और खुदा का मेल करवा दिया। इसलिए सलीब मेल और मिलाप का निशान है। जैसे सलीब के अंदर हम देखते हैं 2 लकड़ियां होती हैं। कितनी लकड़ियां? 2 लकड़ियां। एक लकड़ी ऐसे आसमान की तरफ सीधी होती है और दूसरी जो है उसके ऊपर वाले हिस्से से थोड़ा नीचे करके, जो कह लें उसके उस लकड़ी के अगर 3 हिस्से किए जाएं तो पहले हिस्से पर जहां हिस्सा पूरा होता है इस लकड़ी को तिरछा रख दिया जाता है, तब सलीब बनती है। तो 2 लकड़ियां जब आपस में मिलती हैं तो ये निशान है कि इंसान का खुदा के साथ क्या हो गया है? मेल मिलाप। और ये सलीब जो है ये फतह का निशान बन गई है। आमीन। हमारी क्या है? फतह। दुनिया के लिए ये जिल्लत का निशान थी। कोई सलीब पर चढ़ना पसंद नहीं करता था, लेकिन आज हम देखते हैं मसीही कई बार ऐसा होता है गुड फ्राइडे के मौका पर वो इतनी मोहब्बत का इजहार करते हैं कि एक नौजवान था, अभी मुझे मुल्क का नाम तो नहीं याद, लेकिन उसने कहा जी मैं चाहता हूं कि जब आप मसीह के सलीबी दुखों का मंजर पेश करें ड्रामे में तो मैं रियल तौर पर मसलूब होना चाहता हूं। और उस नौजवान ने हकीकी तौर पर अपने आप को सलीब पर कुर्बान कर दिया। मसीहत में बहुत सारे लोग हैं मोहब्बत का इजहार इस तरह से भी करते हैं। एक कलीसिया को हमने देखा कि वो गुड फ्राइडे के मौका पर एक नौजवान को उन्होंने सलीब दी ताकि वो उठाए, और जैसे यरूशलेम की गलियों में औरतें रो रही थी और पास आकर कहती हैं यीशु हम तेरे लिए रोती हैं, तो इस तरह का सीन क्रिएट किया गया कि नौजवान सलीब उठा के जा रहा है और औरतें रो रही हैं। ये सब मोहब्बत का निशान है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन सारी बातों के साथ साथ अगर दिल में मसीह की सलीब की मोहब्बत ना हो, अगर दिल में मसीह ना हो, अगर दिल में कफारे की अहमियत ना हो, तो ऐसे ही रसूमात अदा करना किसी काम का नहीं। किसी का सलीब पर कुर्बान होना हमें निजात नहीं दे सकता, क्योंकि सिर्फ मसीह कुर्बान हुआ है तो निजात मिली है, वरना मसीह से पहले भी लोग सलीब पर क्या होते रहे हैं? मरते रहे। क्योंकि ये जिल्लत थी और सबसे बड़ी सजा थी जो दी जाती थी रूमी हुकूमत के अंदर। और चौथी बात यह है कि सलीब अदल और इंसाफ का निशान ठहरी है। खुदा ने जो इंसाफ पसंद है, जो अच्छा मुनसिफ है, उसने सारे इंसाफ के तकाजों को, हमारी बदियों को सजा देने के लिए, हमारे गुनाहों को की सजा देने के लिए उसने यीशु मसीह पर ये सब कुछ होने दिया। और ये अदल हो गया कि हमारे गुनाह की कीमत भी चुकाई गई, हमारा दुख भी किसी ने सहा, और खुदा के अदल का भी जो है वो निशान कायम रहा है। खुदा मुनसिफ है, वो कभी भी बेइंसाफी नहीं करता। और याद रखें, सलीब पर कुछ लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि जब यीशु मसीह को मसलूब का एक आधा इंसाफ है, करे कोई तो करे कोई। लेकिन देखें, खुदा ने सुलह करने के लिए कोई इंसान किसी इंसान का फिदिया नहीं दे सकता था, क्योंकि बाइबल कहती है सब ने क्या किया है? तो गुनाहगार इंसान एक गुनाहगार का जो है वो फिदिया नहीं दे सकता, कीमत नहीं दे सकता, कफारा नहीं दे सकता। गुनाहगारों के फिदिया के लिए कोई बेऐब चाहिए था। और यूहन्ना की इंजील जब हम पहला बाब पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह को आते हुए देखा यूहन्ना ने, और उसने कहा कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा लिए। तो खुदा ने अदल का तकाजा पूरा किया, और ये सारे अदल के तकाजे मसीह में पूरे हुए। इसलिए सलीब अदल का क्या है? निशान है। फिर सुने, सलीब अदल का निशान है, सलीब फतह का निशान है।
सलीब इंसान और शैतान के दरमियान आर्जी दुश्मनी का निशान है। सलीब इंसान की बदनसीबी का इजहार है। इसके अलावा दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। चर्चिस के अंदर सलीबें लगती हैं, उस पर एक स्टैचू बनाकर मसरूफ भी किया जाता है। ये सब रसूमात है। कोई शख्स यूरोप के अंदर गया और उसने, क्योंकि नया गया था, तो संडे का दिन था, तो उसने सोचा मैं इतवार वाले दिन आज चर्च जाऊंगा। अब चूंकि वहां पर कोई उसका वाकिफ नहीं है, तो वो पूछना चाहता है कि चर्च कहाँ होगा। तो ये सोच ही रहा, तो एक नौजवान उसके सामने से गुजरा जिसने काफी सारी सलीबें जो है वो अपने बदन पर लगाई हुई थी। गले में सलीब लटकाई हुई है, कानों में भी उसने सलीबें लटकाई हुई हैं, और उसके बाजू में चेन है, उसमें भी सलीब है, अंगूठी पहनी है, उस पर भी सलीब है। उसने कहा ये मुझे बताएगा कि चर्च कहाँ है। तो उसने उस नौजवान को कहा कि क्या आप मसीही हो? उसने कहा नहीं। और वो हैरान हो गया, उसके पांव के तले से जमीन निकल गई कि ये कैसा शख्स है, सलीबे पहन के कहता है मैं मसीही नहीं। उसने कहा अच्छा आप मसीही नहीं हो, तो आपने ये इतनी सारी सलीबें क्यों पहनी है? उसने जवाब दिया कि सलीब मेरा फैशन है। सलीब क्या है? मेरा फैशन। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सलीब को अदल का तकाजा नहीं समझा, कफारे का निशान नहीं समझा, फतह का निशान नहीं समझा, उस दुश्मनी के मिटाने का निशान नहीं समझा जो इंसान और शैतान के दरमियान थी, बल्कि फैशन के तौर पर ले लिया। औरतें जब जाती हैं सुनार के पास, सुनारे को जांदियां ने, तो कहते जो भी अंगूठी आप बनाए ना उते कदे सलीब होए ना। फिर सोचती हैं अच्छा चेन होए ना तो गले च की हो जी सलीब। याद रखें, बतौर फैशन अगर करना है तो सलीब को कभी भी ऐसा ना हो। चर्चिस के अंदर लगाई जाती हैं लेकिन उनकी इज्जत नहीं की जाती। और मैं समझता हूँ मसीहत में ये निशान जब आ गया है तो दूर से किसी बिल्डिंग पर जब सलीब बनी होती है तो पता चल जाता है ये क्या है, चर्च है। बाज़ मसीही अपने घरों पर लगाते हैं। लोगों को सलीबें लगानी चाहिए, और मेरा दिल बड़ा खुश होता है जब कोई क्रिश्चियन मैदान के अंदर मैच खेलते हुए जब कोई छक्का मारता है तो साथ ही वो बैट को रख के तो क्रॉस का निशान बनाता है। और मैं आपको कहूँगा ये आप जब बनाए ना, कई लोग बनाना चाहते हैं लेकिन उन्होंने पता ही नहीं कि कहता है। अगर बनाना तो ठीक बनाए ना। एक पादरी साहब थे, वो कहने लगे जो है मुझे समझ नहीं आती ये जो लोग करते हैं और अपनी एक टांग पे हाथ रखता है बाप बेटा, ये कोई ऐसे है? बाज़ लोग हैं वो ऐसे ऐसे करते हैं। जब भी आपने बनाना है तो मेरे साथ मिलकर बनाइए ताकि हमें आ जाए क्या निशान बनाना है, सलीब का। बोले बाप बेटा रूहुल कुद्दस, इधर बाएं हाथ की तरफ, फिर बने बाप बेटा रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन। तो ये पूरा निशान है, पहले ऊपर, फिर दिल पर, फिर बाईं तरफ और फिर दाईं तरफ, ये निशान है। और अगर आपको नहीं आता तो ना बनाए, अगर बनाना तो ठीक बनाए। और ये निशान ऐसा है कि जहां पर हम बगैर बोले बता सकते हैं कि मैं क्या हूं, मसीही। लेकिन ये भी है कि खाली निशान नहीं बनाना बल्कि अंदर भी मसीह होना चाहिए। पालूस को मसीह मिल गया, उसने कहा अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में क्या है जी, जिंदा। और इसीलिए पालूस देखिए कितनी जबरदस्त बात करता है। हवाला जो हमने पढ़ा पहले बाब की 7वीं आयत की आखिरी लाइन है, और वो कहता है ताकि मसीह की सलीब बेतासीर ना हो। किसकी सलीब जी? मसीह की सलीब बेतासीर ना हो। एक रवायत है, कस्तंतीन की माँ
जो थी हेलेना। कंस्टेंटीन एक बादशाह था, रोमी बादशाह, और बहुत उसने मसीहत के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई। जब वो बादशाह बना, उसने जगह जगह चर्चेस बनाए और मसीहत को बड़ा फरोग दिया। तो कंस्टेंटीन बादशाह जो था, इससे पहले कि मैं उसकी मां की बात करूं, उसने अपने ख्वाब में, कंस्टेंटीन ने ख्वाब में देखा कि आसमान पर एक रेड कलर की, सुनहरी कलर की सलीब है और ऐसे घूम रही है। जब वो जागा तो बड़ा हैरान था कि मुझे ख्वाब में सलीब नजर आई है। उसने चंद एक खादमों को जमा किया और उनसे पूछा कि मुझे आसमान पर सलीब नजर आई है और सुनहरी सलीब। तो ताबीर करने वाले ने बताया कि सुनहरी जो है वो सुनहरी रंग सल्तनत को जाहिर करता है, बादशाही को जाहिर करता है, और सलीब जो है वो आपको आसमान पर ऊपर नजर आई है। इसका मतलब है कि सलीब के निशान की अगर आप कदर करोगे, अहमियत दोगे, तो फिर आपको फतह ही फतह होगी और आपकी सल्तनत जो है वो हमेशा कायम रहेगी। उसने अपनी बादशाही के अंदर, उस दौरे हुकूमत में जब वो बादशाही करता था, उसने सलीब को बहुत ही फरोग दिया, और जिस कदर वो फरोग देता गया उसी कदर उसे फतह पर फतह मिलती रही। आज मैं ये कहूँगा, अगर हम सलीब को अपनी ज़िंदगी में इज्जत देंगे तो खुदा हमें फतह पर फतह देगा। फिर उसकी माँ की बात करता हूँ कि सलीब की तासीर के ताल्लुक से उसकी माँ जो हेलेना थी, सेंट हेलेना, मुकद्दस औरत थी, उसके बारे में कहा जाता है कि एक मौका पर उसका बेटा बीमार पड़ गया और मरने के करीब था। तो चूंकि उसने सुना था कि सलीब में कुदरत पाई जाती है, तो उसने अपने दिल में तहैया किया कि मैं कलवरी के पहाड़ पर जाऊंगी और वहां पर जाकर मैं यीशु की सलीब की लकड़ी लेकर आऊंगी और अपने बेटे को लगाऊंगी और मेरा बेटा क्या पा जाएगा? शिफा पाएगा। ये कहावत है, ये एक रवायत है जो किताबों के अंदर मिलती है कि वो गई और बूढ़ी थी, बड़ी मुश्किल से उस पहाड़ी पर चढ़ी और उसका ईमान था कि मैं लकड़ी लाऊंगी तो क्या होगा? मरीज शिफा पा जाएगा। अब देखें, जब वो उस पहाड़ी पर गई तो उसका ख्याल था कि सिर्फ यीशु की सलीब वहां होगी, मगर जब पहाड़ी पर गई तो वहां तो सलीबें ही सलीबें थी। क्यों सलीबें ही सलीबें थी? क्योंकि रूमी लोग उस कलवरी के पहाड़ पर बहुत सारे लोगों को मसलूब कर चुके थे। वो पहाड़ था इसलिए, वहां पर खोपड़ियां पड़ी रहती थी, इसलिए उसका नाम खोपड़ी का पहाड़ भी है, उसे गुलगुता भी कहते हैं। उस पहाड़ पर जब वो गई, परेशान हो गई, क्योंकि अब मंजिल और दूर नजर आ रही है, बल्कि नामुमकिन। सोच रही है कि कौन सी सलीब यीशु की होगी। अब देखिए हिम्मत उसकी कि वो हर एक लकड़ी में से थोड़ी थोड़ी लकड़ी लेकर आई और अपने उस बेटे को जो बीमार था लगाती गई। जब दूसरी सलीबों की लकड़ियां लगती रही, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जी हुई उसने यीशु की सलीब की लकड़ी अपने बेटे को लगाई तो बताया ये जाता है कि वो बच्चा जो है वो तंदुरुस्त हो गया, शिफा पा गया। यीशु की सलीब, दुनिया में बड़ी सलीबें हैं, लेकिन निजात सिर्फ और सिर्फ किसकी सलीब में है? मुआफी किसकी सलीब में है? यीशु की सलीब में। इसलिए मैं ये कहूंगा, सलीब की कदर करें, लेकिन यीशु की उस सलीब को मत भूलें जिसका सिर्फ निशान नहीं हमने लिया, बल्कि उसके पैगाम को भी लिया है। आमीन। और पालूस ने करंथस की कलीसिया को यह कहा था, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो क्या है? आज बहुत सारे लोग हैं जो सलीब के पैगाम को नहीं समझते और वो सारे हलाक होने वाले हैं, बर्बाद होने वाले हैं। लेकिन हम जो उसके पैगाम पर ईमान लाते हैं, ये हमारे लिए खुदा की क्या है? और आज हम एक सरसरी नजर दौड़ाएंगे यीशु के सलीबी कलमात पर।
यसु के सलीबी कलमात तादाद में कितने थे? 7। और कहा यह जाता है कि आखिर यसु मसीह ने 7 ही सलीबी कलमात क्यों बोले? इसलिए कि 7 का अदद जो है वो कामलियत का अदद है, मुकम्मल होने का अदद है। इसलिए मसीह ने मुकम्मल पैगाम दिया। और देखें इन कलमात में पहला कलमा जो है उसमें भी वो बाप को पुकारता है, और 7वें कलमे में भी वो किसको पुकारता है? बाप। गोया उसके 7 ही कलमात जो हैं उनका आगाज और इख्तिताम बाप से शुरू होकर बाप ही पर होता है। आमीन। मैं ये कहूँगा, दुख हो या सुख हो, हमारी जिंदगी का आगाज भी, हमारी दुआओं का आगाज भी खुदा बाप से ही होना चाहिए, और खुदा बाप ही पर खत्म होना चाहिए। आमीन। जो लोग खुदा से शुरू करते हैं और खुदा पर ही खत्म करते हैं, उनकी जिंदगी में कभी नाकामी नहीं होती। लेकिन जो अपनी सोच से शुरू करते हैं, अपने माल से शुरू करते हैं, किसी के मशवरे से शुरू करते हैं, उनके फासले अधूरे, मंजिलें अधूरी, सफर नामुकम्मल। लेकिन देखें, एक अच्छा नमूना है कि बाप से शुरू किया और बाप ही पर क्या किया? उसने खत्म किया। मुकम्मल पैगाम दिया। और इन 7 कलमात के अंदर जब हम देखते हैं तो पहला कलमा माफी का कलमा, जैसे बेटी ने बताया, कौन सा कलमा है? माफी का कलमा। और इस कलमे से हम सीख सकते हैं कि खुदा इंसानों से किस कदर प्यार करता है, और ना सिर्फ खुदा बाप बल्कि खुदा बेटा भी इंसानों से बहुत प्यार करता है। आज किसी को दुख होना तो उससे कोई मदद मांगे तो लोग कहते हैं साड़ी अपनी नहीं पूरी पैंदी, तेरी की मदद करिए। लेकिन इस पर गौर करें कि दुखों की हालत में भी इंसानों की क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। और उनकी मदद कर रहा है जो उसे सता रहे हैं, उनकी मदद कर रहा है जो उसे बुरा भला कह रहे हैं, उनकी मदद कर रहा है जो उस पर लान तान कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहा है जिन्होंने उसे जलीलो रुसवा कर दिया, उनकी मदद कर रहा है जिन्होंने उसके चेहरे की रौनक को बिगाड़ दिया है, उनकी मदद कर रहा है जिन्होंने उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया है, उनकी मदद कर रहा है जिन्होंने उसकी कमर पर कोड़े मारे हैं, उनकी मदद कर रहा है जिन्होंने उसके मुंह पर थूका है। आज कोई साढ़े मुंह ते थूके तो मदद करांगे? इंसान का रवैया हमेशा ऐसा ही होता है कि अच्छों के साथ अच्छा होता है और बुरों के साथ बुरा। और याद रखें, ये रवैया इंसानी भी है और ये रवैया दुनिया का रवैया है। खुदा का ये रवैया नहीं है, उसके बेटे का ये रवैया नहीं है। आप देखें, वो सबसे पहले कहता है, ऐ बाप इनको माफ कर। किनको माफ कर? जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने मुझे सताया है, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। तो माफी की दरख्वास्त उसने की, और इससे मुराद है कि खुदा इंसानों की माफी का तलबगार है। और आज इस गुड फ्राइडे पर कहना चाहूँगा, अगर आपको अभी तक माफ़ी का यकीन नहीं तो यकीन करें कि यीशु ने इसलिए पर कहा था कि अब आप इनको, मेरे लिए भी कहा था, आपके लिए भी कहा। फिर दूसरे नंबर पर उसने उस डाकू को कहा था कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। इसका मतलब है कि फरदौस सचमुच एक हकीकत है। ये कोई किस्सा नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, या एक ख्याल नहीं है कि फरदौस है, बल्कि यीशु मसीह ने सख्त जान करने की हालत में डाकू को कहा था, तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। इसका मतलब है वो फरदौस में गया, डाकू फरदौस में गया, हम भी फरदौस में जाएंगे। आमीन।
تو اس گڈ فرائیڈے پر کہنا چاہتا ہوں کہ فردوس ہمارا ہے. آمین. فردوس میرا ہے، فردوس آپ کا ہے، جس کو جنت بھی کہتے ہیں، جس کو ہیون بھی کہتے ہیں، جس کو آسمان کی بادشاہی بھی کہتے ہیں، جس کو خدا کی بادشاہی بھی کہتے ہیں، جس کو مسیح کی بادشاہی بھی کہتے ہیں. وہ میرا ہے وطن، وہ آپ کا ہے وطن. وہاں رونا نہیں، وہاں دانتوں کا پیسنا نہیں، وہاں بیماریاں نہیں، وہاں دکھ نہیں، وہاں کمزوریاں نہیں، وہاں موت بھی نہیں، وہاں خوشیاں ہی خوشی. فردوس پر ایمان لانا اس گڈ فرائیڈے پر. مسیح نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تیسرے نمبر پر اس نے کہا اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں. بیٹا کہا، ماں کہا. اگرچہ اس نے شروع میں عورت کہا تو لوگ سمجھتے ہیں اس نے بدتمیزی کر دی، جی عورت کہہ دیا. لیکن یاد رکھیں یونانی میں جب عورت کہتے تھے تو اس کا مطلب تھا کہ اے بزرگا، اے مقدسہ، اے برگزیدہ. آج سے میں تو جا رہا ہوں تو جو ہی میں مر جاؤں گا تو میرا تیرا رشتہ جو ہے وہ اگرچہ قائم تو رہے گا روحانی طور پر، لیکن میں نہیں ہوں گا. تو پھر میں تیری مدد بھی نہیں کر سکتا، جہاں پر خدمت بھی نہیں کر سکتا. جیسے 33 سال میں تیرے ساتھ رہا، میں نے تیرے کہنے پر غور کر کے کانا گلیل کے اندر بڑا معجزہ کر دیا تھا، تو اب اس کے بعد میں تیری مدد نہیں کر سکوں گا. ایک سنڈے اسکول کی کتاب تھی، میں نے پڑھی بچپن میں، تو اس میں بتایا گیا کہ کیونکہ یسو کے گھر میں کوئی بچی نہیں تھی، لڑکی نہیں تھی، تو یسو جب جوان ہوا نا تو ماں کے ساتھ برتن بھی دھلواتا تھا، وہ کپڑے بھی دھلواتا تھا. کبھی کبھی ماں اس کو کہتی ہو کہ ایک پاسے تو پھڑ کپڑا تو ایک پاسے میں پھڑ لیا، تے آ نچوڑیے مدد کر. اور ان دنوں گھروں کے اندر نلکے نہیں تھے، باہر کنووں سے لوگ پانی بھر کے لاتے تھے. یسوع چھوٹے چھوٹے ڈول لے کر ماں کے ساتھ پانی بھرنے میں، کیونکہ یہودی عورتیں پانی بھرا کرتی تھی، تو یسوع ماں کی مدد کرنے والا تھا، کرتا تھا. وہ باپ کے ساتھ بھی مدد کرتا تھا. اور لگتا ایسا ہے کہ جب وہ مصلوب ہوا تو اس کا پالنے والا باپ پہلے ہی خداوند کے پاس جا چکا تھا. اب ماں ہے جو صلیب کے پاس ہے، تو اس نے انہیں نہیں کیا بس ہوں ماں بس میں کچھ نہیں کر سکا، اس نے انتظام کیا. اور بچوں سنو، جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، آپ کو گڈ فرائیڈے پر یہ پیغام دیتا ہوں کہ یسوع نے اپنی ماں کی فکر کی اور اس بات کا اظہار کیا کہ وہ اپنے ماں کی کتنی عزت کرتا ہے. تو آپ دکھوں کی سولی پر بھی چڑھ جاؤ نا تو کبھی ماں کو نہ بھولنا. بچے کو جب چوٹ لگتی ہے تو کیا پکارتا ہے؟ ہائے میری ماں. تو دیکھیں ہائے کے لیے تو پکارتا ہے ماں، لیکن کاش کے دکھوں میں بھی یاد رکھے اور ماں کا انتظام کرے مرتے دم تک. اگر آپ کے والدین زندہ ہیں ان کی عزت کرو اور عمر کی درازی کرو. آمین. تو اس جس کو یہ ذمہ داری دی گئی، بتایا جاتا ہے وہ اسی دن اس ماں کو اپنے گھر میں لے گیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ اچھا کزن ہے، اچھا کزن ہے. اچھی کزن بھی خود کو ثابت کرے نا. کئی بار کہتے ہیں اے میرا مسیر ہے، اے میرا چچیر ہے، اے میرا پھپھیر ہے، اے میرا ممیر ہے. ممیر مامے دا منڈا، پھپھیر پھپھی دا منڈا، مسیر ماسی دا منڈا، چچیر چاچے دا منڈا. لیکن صرف کہنا نہیں بلکہ ایک دوسرے کے بولوں کی قدر کرنی ہے. وہ یوحنا اپنے کزن کی بات کو سن کر اس کی ماں کو پھر اپنے گھر لے جاتا ہے. ماں باپ کی عزت کریں، کزن ہونے کا یہ ثبوت دیں، پروف دیں. آپ کچھ لڑیا نہ کرو. کئی بار آگے ماسی ماسی دے ہوں نے لیکن مار دیں دیں. ایسی محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے. چوتھے نمبر پر جب اندھیرا ہو گیا ہے، کیونکہ یسوع مسیح پر ساری دنیا کے گناہ آئے ہیں، اور خدا جو انصاف کا خدا ہے، بدی کو دیکھ نہیں سکتا،
थोड़ी देर के लिए बाप बेटे से जुदा होता है, बेटा पुकार उठता है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक अंजील में लिखा हुआ है, एली एली लमा शबकतनी, एली एली लमा शबकतनी। और बाज वहां पर सलीब के पास खड़े हैं, वो कहते हैं एलिया को पुकारता है। एक भाई ने सवाल किया, सारे तो यहूदी सन, यूनानी बोलते सन, तो उन्हें क्यों कहता है एलिया को पुकारता है? तो जो मेरी दानिश है मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने उस भाई को भी बताया। असल में यहूदी एल कभी नहीं कहते थे, यहूदी लफ्ज एल कभी नहीं कहते थे। यहां तक जो खुदा के लिए लफ्ज एल आया है ना, उसको पुकारते भी नहीं थे। और अगर कोई लिखता तो लिखने वाले जब एल लिख देते तो उसके बाद उस कलम को तोड़ देते थे कि अब खुदा का नाम लिख दिया, इस कलम से और क्या लिखे। इतनी इज्जत यहूदी लोग एल की बजाय खुदा को अदोनाई कहते थे, जिसका तर्जुमा खुदावंद किया जाता है। और उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई आएगा और कहेगा एली। एल के बाद लाहक का यी है, जिसका मतलब है ऐ मेरे खुदावंद। तो खुदा को पुकार रहा है, और उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये खुदा को पुकारेगा। इसलिए वो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? ये एलिया को पुकारता है, तो भी अगर कोई और तशरीह मिल जाए हम उसको भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं।